Hello, my dear kids. This is Chetan sir. Good morning, everybody. Okay, so this is lecture number 6. ठीक है ना? तो क्या ये लेक्चर नंबर 6 है? कहीं मिस्टेक? लेक्चर नंबर 5 सर, लेक्चर नंबर 7 सर, ऐसा कुछ नहीं है ना? So this is lecture number 6. We all know that है? ठीक है? Okay. So this is chapter 8 and the heading of this chapter is gravitation. We all know that. And this is physics subject. Okay. So this physics belonging to NCERT class 11 physics, whereas today's concept is 8.6 satellites in detail. तो satellites के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. Fine. So this is beta series of my version of physics, whereas my YouTube channel's name is Physics Indian Professor. ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट किया गया है Physics Indian Professor. Okay, fine. तो बच्चों I'll start 8.6. Okay, satellites. कल हमने सैटेलाइट्स क्या है ये चीज देखा इन डिटेल, तो थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे. एंड वी यस्टरडे स्टडीड अबाउट सैटेलाइट. डेफिनेशन ऑफ सैटेलाइट को हमने पढ़ाई किया. ठीक है. एंड टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस. तो नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वी कैटेगराइज दैट. तो हमने कैटेगरी अपने हिसाब से बना ली, जो कि है natural satellite in the sense the celestial objects which are revolving around the planet. So such type of objects are called as natural satellites, like moon, है ना? Moon is the best example for natural satellites. But for artificial satellites, हमने बोला कि man-made satellites are the best artificial satellites. Means through which we are going to make the remote sensing. The remote sensing क्या होता है? Specifying the location of objects which are fixed or which are at the remote areas. ठीक है, remote areas पे हैं तो वहां पे हम लोग locate करते हैं चीजों को. First thing. Second thing, to communicate between two systems. दो systems के बीच में communicate करने के लिए satellites are very much usable. Third one, it is used to have the pictures of the enemy territory. Fourth one, it is used to have the mapping of the land surfaces. ठीक है, where you are going to see the numerous seasonal changes. तो उस land surfaces पे बहुत सारे कहते हैं ना seasonal changes होते हैं ना, वो चीजों को observe करने के लिए we used to have the satellites. Basically by doing that we can find out that कि कहाँ पे कौन सा वाला चीज घटने वाला है, what type of event will be going to takes place at particular places, like कहते हैं ना lava explosion from the mountains. उसकी जो कहते हैं ना उसका कितना मतलब how much amount of it will be going to make a destruction into particular city or into particular mountain divisions or else into the hilly areas, as well as rainy season कहाँ पे होने वाला है, or else you can recognize the tsunami like things. ठीक है, तो उसका alertness हम दे सकते हैं with the help of satellites, as well as thunderbolt, yeah. और many more things, like we can give so many informations. ठीक है, बहुत सारी चीजें. As well as you can identify the addresses of unknown things जो कि हमें पता नहीं रहता है, and we know the address of that by using the GPS locator. So GPS locator किससे guide होता है? It will be guided by the satellites, है ना? And tornado like things, you can give early alert to the society when the tornado is arriving after 1 hour. तो उसकी आप early warning पहले ही दे सकते हो with the help of satellites. Anyhow, मैंने आपको ये सारी चीजें बहुत ही रफली बताई. We are going to see all those things specifically. ठीक है, टेक्निकली वो चीजों को देखेंगे by which satellites such kind of things will be observed. So yesterday we categorized with the help of कहते हैं ना existence के ऊपर हमने कैटेगरी बनाई थी. But now today we are going to categorize the satellites on the basis
ऑफ हाइट्स, हाइट के बेसिस पे हम लोग कैटेगरी बनाएंगे सैटेलाइट्स की। चलो कोई बात नहीं, विल सी दैट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है ना, वी यूज्ड टू से दैट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ठीक है, दीज आर मैन मेड, ठीक है, ये क्या है, मैन मेड सैटेलाइट्स हैं। ओके, now basically where we see, sir, this one we can call man-made satellites or artificial satellites as earth satellites। तो अर्थ सैटेलाइट्स को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, more and more we can call it as man-made satellites। natural satellite तो एक ही है, मून है of the earth, ठीक है, so maximum portion of the earth satellites will be covered with the man-made satellites, ठीक है। so these are the bodies, these are the bodies which revolve around, which revolve around the earth in definite orbits, ठीक है। now you peoples are observing these things, these are the bodies which revolve around the earth in definite orbits, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्थ सैटेलाइट्स कहते हैं, फाइन, या सृष्टि नंदा, गुड। नाउ अर्थ सैटेलाइट्स में हम लोग को पता है कि नेचुरल सैटेलाइट की एक कैटेगरी होती है और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की एक कैटेगरी होती है। बेसिकली नेचुरल सैटेलाइट इज ओनली वन, मून, सो इसके बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की कैटेगरी, ठीक। सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होता है बेसिकली, सो इट ऑलवेज ट्रैवल अराउंड द अर्थ, ये तो सबको पता है सर, इसमें कौन सा नया चीज है। सो इट विल बी हैविंग सम कंडीशंस, मींस आर्टिफिशियल सैटेलाइट कोई हो and if it is revolving around the earth and it should hold some means to have the artificial satellite, उसके लिए कुछ conditions होते हैं, you need to satisfy some conditions। if anything which is man made and it is revolving around the earth, it should uh, it should fulfill some condition, it should satisfy some condition। what are those condition जो कि एक artificial satellites में अच्छा artificial satellite बन के means it should go hold good, ऐसे कौन से conditions हैं, so we are going to see that, ठीक है। so the first condition to hold good as an artificial satellite around the earth is the body, means the man-made, okay, the man-made system, it we call it as body। the body must possess, the body must possess high speed, so as to overcome the gravitational pull of the earth। now let me tell you one thing my dear kids, say for example this is you, ये आप हो, ठीक है, और यहां से towards the positive x axis one person is dragging you, ठीक है, तो आप इधर ही जाओगे। so to stop the motion of this body in the positive x direction, इसके लिए आपको एक अलग से फोर्स बनाना पड़ेगा to stop this, इसको stop करने के लिए, okay, so to drag this into negative x direction, but to stop I'm saying, but we are talking about high speed, but say for example this person is dragging towards positive x axis, so to avoid the movement into positive x direction, अगर समझो कि मोशन किसी और डायरेक्शन में इस बॉडी को देना हो एंड यू विल स्टॉप द moving object towards positive x axis, instead of that it will move towards positive z axis, तो आपको
ऐसे फोर्स देना पड़ेगा which should overcome the dragging force by the person who is standing on positive x axis. तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कोई बंदा खड़ा है और वो आपको खींच रहा है, and to overcome that force you need to apply the force in positive z axis, and that force on the z axis should be greater than the force on the positive x axis. ये चीज होना चाहिए. So what it means, इसका मतलब क्या है सर? You know my dear kids, whenever you propel an object, whenever you propel an object, whenever you propel an object, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को आपने प्रोपेल किया, कहां से किया? फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ with the help of rocket. So that rocket when it comes into the orbit, तो जब वो रॉकेट जो है ना, if it comes to the orbit, जब ऑर्बिट के ऑर्बिट में आता है, and it will expels the satellite, तो सैटेलाइट को वो छोड़ता है, ठीक है. So first of all, that satellite when it enters into the orbit of the earth, it should have high speed. हाई स्पीड कब मिलेगा? जब आप उसको फोर्स दोगे, जब आप उसको हाई मोमेंटम दोगे, तभी जाके वो हाई स्पीड से इस ऑर्बिट में चलेगा. और एल्स इट विल बी गोइंग टू गेट डाउनफॉल टुवर्ड्स द अर्थ. इसके पास अगर हाई स्पीड नहीं है तो डेफिनेटली इट विल बी गोइंग टू गेट डाउन टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन which holds good as a artificial satellite. एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट के पास पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? उसके पास इतना हाई स्पीड होना चाहिए कि so as to overcome the gravitational pull of the earth. This is first condition. ठीक है. Now the second condition, the body should lie well beyond the earth's atmosphere, that is at a distance of about 5,000 kilometer from the surface of the earth. Otherwise, the body will destroy due the heat generated by friction with the air. क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? Tell me what they are asking you. The body should lie well beyond the Earth's atmosphere. ठीक है. Otherwise, the body will destroy due the heat generated by the friction with the air. क्या कह रहे हैं वो? What they are trying to say? See here, my dear kids. This is your Earth. ठीक है. This is your Earth, and whatever you're keeping the object, you're keeping the object here, the distance between this object and the, कहते हैं ना, surface of the earth, it should be 5,000 kilometer. क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? Now with the pink color, what I'm going to do, I'm going to draw an atmosphere of the earth. तो ये आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर है, समझ लो.
So if the object is revolving inside the earth's atmosphere, you know what, this object will get burnt. Which one? सैटेलाइट. ये आपका सैटेलाइट है. अगर ये सैटेलाइट एटमॉस्फेयर अंदर आके रिवॉल्व करता है, और एल्स इट विल एंटर फ्रॉम द आउटर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर, वहां से एटमॉस्फेयर के अंदर एंट्री लगाता है, ठीक है. सो डेफिनेटली what will happen, it will get destroyed due to what, due to enormous amount of heat absorbed by that atmosphere from the sun. ठीक है. तो इसीलिए सैटेलाइट का जरूरी है कि इट शुड बी यू नो 5000 किलोमीटर एटलीस्ट. तो ऑर्बिट फिक्स नहीं होता है. ऑर्बिट आप फिक्स करते हो at different heights, so there you should give some speed. So that speed will not be going to get less unless until somewhat कहते हैं ना hindrance, or else somewhat resistance made by something opposite to that. या तो air कह लो, air molecules, if it is resisting the speed, high speed of the satellite, उससे वो speed घट सकता है, और else उसका direction change होके वो crumble हो सकता है, or else it will move away from the orbit. किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकता है. इट मे बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, और इट मे बी इन द इनवर्ड डायरेक्शन, किधर भी फाइन. बट मैक्सिमम ये चीज नहीं होता है. व्हाई सर, व्हाई इट डजंट हैपन? व्हाई द सैटेलाइट ऑलवेज रिवॉल्व इनटू सर्कुलर ऑर्बिट? व्हाई डोंट गो अवे? बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफर्ड बाय द अर्थ. क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का जो मेन कारण होता है, इट इज ग्रेविटेशनल पुल और ग्रेविटेशनल फोर्स. So the gravitational force is applied on the satellite, which is revolving inside the orbit. So due to that, the satellite will not leave the orbit of the Earth. ठीक है. Orbit of the Earth fix नहीं होता है बच्चों. Try to understand my point. So different orbit also I'm going to draw here. कोई और orbit भी डालूंगा इसके ऊपर. क्या सर दूसरा orbit भी हो सकता है? Yes, my dear kids. Listen. ये भी orbit हो सकता है. ठीक है. ऐसा भी हो सकता है. ये दूसरा ऑर्बिट है. क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है? एवरी टाइम फिक्स ऑर्बिट ऐसा कुछ नहीं है. इन विच एवर हाइट यू आर पुटिंग द सैटेलाइट्स, उसी हाइट में उस सैटेलाइट को रिवॉल्व करना है बाय मेकिंग रेडियस ऑफ दैट हाइट. अभी इस रेडियस को, से फॉर एग्जांपल यू आर पुटिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, इस हाइट पे किसी सैटेलाइट को आप छोड़ते हो, दैट सैटेलाइट शुड रिवॉल्व विद दिस हाइट ओनली. इसी रेडियस को रख के वो रिवॉल्व करना चाहिए, एंड दैट विल बी फिक्स. सर हाउ सर? One is gravitational force, which is allowing centripetal force to hold that object in the grip. Centripetal force क्या करता है? वो एक grip पे पकड़ता है सैटेलाइट को. And with that, centripetal force के पास क्या होता है? FC, centripetal force. This is mv square by r. ये जो v है ना, this is high speed. ठीक है. Angular speed होता है, high speed होता है. So with this force, the satellite is revolving around the earth. Sir, with that, what it makes is, क्या हम इसका स्पीड ज्यादा कम कर सकते हैं सर? कम कर सकते हैं. ज्यादा करने का ऑप्शन बहुत ही टेम्पोररी होता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट. द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट कैन बी मेक स्लो, बट हाई स्पीड जो है ना, वो टेम्पोररी होता है. मींस उसमें नाइट्रोजन फ्यूल रहता है इनटू दैट सैटेलाइट. फॉर 1 or 2 times we can increase the speed of the satellites by changing the direction, by using the momentum. ठीक है. मोमेंटम को यूज करके, थोड़ा सा फ्यूल यूज करके, बूस्टर्स को कहते हैं ना रन करके, 1 या 2 बार टेम्पोरली स्पीड इंक्रीज किया जा सकता है, लेकिन डिक्रीज ही कर सकते हैं. स्पीड हर बार नहीं कर सकते. ओके. लिमिटेड अमाउंट ऑफ अथॉरिटी रहता है स्पीड इंक्रीज करने का, क्योंकि वो तो नॉन लिविंग थिंग है. इट इज नॉट अ लिविंग थिंग. ओके. नाउ यू गॉट माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. क्या इसके बारे में क्लियरली थोड़ा बहुत पता चल गया बच्चों? 2 पॉइंट्स जो मैंने बनाए अर्थ सैटेलाइट्स के बारे में. ओके. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक माय डियर किड्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है. एनीहाउ, we'll come to the geostationary satellites.
ओके, बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस, इसको आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ। ये चीज यहाँ पे, as I said that will destroy due to the heat generated by friction with the air. I think this one, particularly this one, you people have saw. क्या ये आपको नाम पता है? कल्पना चावला. How many of you know this name? Who is she? Who is she? Who is she? पता है? हाँ हाँ सर पता है, लेकिन कौन है वो? या वेरी गुड परिजन. एस्ट्रोनॉट, इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट. So she took, yeah, she took space journey into शटल कोलंबिया. शटल कोलंबिया मतलब ये जो शटल कॉक वाला, वो वाला शटल नहीं, ठीक है? ये एक स्पेसशिप है इस तरह का, ठीक है, जो कि रॉकेट के साथ इसको फर्स्ट फिक्स किया जाता है ऐसे, रॉकेट बूस्टर्स के साथ. दिस इज रॉकेट बूस्टर. तो रॉकेट जो है ना, इस एयरक्राफ्ट को ऊपर लेके जाता है इनटू द स्पेस. तो रॉकेट बूस्ट करके ये ऊपर लेके जाके बाद में ये दोनों क्या कहते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. The shuttle as well as rocket boosters will be going to get separate. So by that, this this air spacecraft, this spacecraft कह लो या shuttle कह लो, it will be going to fly here somewhere. ठीक है, यहाँ पे ऐसे fly करता है वो. तो after completion of its flying, तो क्या होता है? It will be going to get dip into the atmosphere. So when it uh, coming through the atmosphere, there will be enormous amount of heat which can destroy the shuttle within a span of time. Within a span of time, झटके से जल जाएगा. But to avoid that, heat shield is patched over the shuttle. शटल कोलंबिया हो या कोई भी हो, तो कोई भी स्पेसक्राफ्ट हो, अगर उस पे आप उस तरह के टाइल्स यूज करते हैं, इट विल बी यूज्ड एज अ हीट शील्ड. तो गर्मी वो सहन कर सकता है. So it is made up of probably different type of materials, titanium, बहुत सारी चीजें, composite materials use करके उसको बनाते हैं. So it will be done by NASA, it will be done by ISRO, it will be done by different space agencies. तो हर एक के अपनी अपनी खूबियां हैं, but the standard one is done made by USA peoples. Okay, ये तो पहले से fixed है. Nowadays India is becoming the leading space power. Anyhow, so इसके अंदर आते वक्त इस पे जो टाइल्स लगे हुए थे ना, मींस all of the body of the shuttle is fixed with those tiles of heat shield. टाइल्स मतलब क्या? फर्शियां होती है ना, उस तरह के कंपोजिट मटेरियल्स वाले फर्शियां. तो उस पे पैच करके वो क्या किए थे, इट वाज सेंट. बट व्हाइल मूविंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये जो रॉकेट बूस्टर है ना, यहां से मूव करते वक्त जब यहां से गया ऊपर, तो क्या हुआ था पहले, मतलब व्हेन इट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, some tiles have fallen from the body of the shuttle. कुछ कम से कम 10-15 टाइल्स गिर गए, अच्छी तरह से पैच नहीं हुए थे. ओके, इट वाज ह्यूमन मिस्टेक, ह्यूमन एरर. सो जब क्या हुआ, जब बाहर जा रहे थे, इट वाज नो इशू. बट व्हेन इट इज कमिंग इनसाइड, कमिंग बैक टू द अर्थ, व्हाट हैपेंड, यू नो, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल. ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा एक्सेलरेशन इंक्रीज होते जाता है ना, उससे क्या होता है, वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होता है. Due to that, the amount of heat is hitting over the open space area of the body of the shuttle, where these heat shield were not fixed, या कह लो वहां से separate हुए थे. At that time what happened, पूरा का पूरा heat से destroy हो गया. I think that footage is in YouTube. If you go and visit to the YouTube, आप मार के देखो कल्पना चावला's कहते हैं ना एक्सीडेंट, कल्पना चावला शटल एक्सीडेंट, ऐसा आप मार के देखो, आपको मिल जाएगा वहां पे. Are you getting my point, my dear kids? So this is what I want to say. Okay. Now geostationary satellites. ये क्या होते हैं sir? What is this sir? Geostationary satellites. I will show you क्या होते हैं geostationary satellites. Say for example, this is your Earth.
एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा डार्क लेते हैं. दिस इज योर अर्थ. चलो ठीक है. दिस इज योर अर्थ. नाउ द एटमॉस्फेयर. ये जो है ना, एटमॉस्फेयर नहीं, ये वाला एटमॉस्फेयर नहीं, एटमॉस्फेयर वाला कुछ और ले लेते हैं. हाँ, दिस इज अर्थ एटमॉस्फेयर. ठीक है, मान के चलो दिस इज योर अर्थ एटमॉस्फेयर. ठीक है, ओके. सो फ्रॉम द ब्लू टू ग्रीन, यहां से लेके यहां तक, दिस इज योर अर्थ एटमॉस्फेयर. क्या है ये? अर्थ एटमॉस्फेयर. ओके. सो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज फिक्स्ड समवेयर हियर. यहाँ पे आपने इस ऑर्बिट में क्या किया है? You fix this satellite from the earth surface up to here. ठीक है. Now the distance between the satellite and the earth surface is 36,000 किलोमीटर. कितना है ये? 36,000 किलोमीटर. फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा. ठीक है, दोनों मिला के. सो बेसिकली इट इज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स. अभी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है? ये एक, इट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट. ये क्या है? इट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट. चलो, नाउ माय डियर किड्स, विच, इस तरह के सैटेलाइट्स होते हैं ना, इट अपियर्स, स्टेशनरी. क्या लगते हैं ये? स्टेशनरी लगते हैं. सर हाउ सर? किसको लगते हैं? टू एन ऑब्जर्वर, ऑन द earth's surface. ठीक है. देखो बच्चों, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं. से फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टैंडिंग हियर, आई विल शो विद द रेड कलर. आई एम स्टैंडिंग हियर समवेयर ऑन द अर्थ and here is the satellite. Okay, so continuously I am observing this satellite. So after passing some time, कुछ टाइम पास होने के बाद, यहां से लेके समझो कि अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है. से फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, we are we are making overview of the earth's rotation. तो यहां पे आके क्या हुआ? Wait. So if it is rotating like this, say for example, now my position is here, but satellite कहां पे आ गया? यहां पे आ गया. So what is the difference, sir? मैं यही तो कह रहा हूं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें. देखो, for us who are seeing this diagram at the laptop or else from the mobile, हमको लग रहा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन जो था वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे था, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ गया. बट से फॉर एग्जांपल यू आर समवेयर हियर, आप यहां पे हो कहीं पे. ठीक है, तो तब अगर आप यहां पे हो, यहां से आपने इस सैटेलाइट को देखा है, आफ्टर पासिंग ऑफ हाउ मेनी 6 hours ऑफ टाइम, 6 घंटा हो गया. 6 घंटे के बाद आप सरफेस पे ही हो और सैटेलाइट आप देख रहे हो कि आपके ऊपर ही है. इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन. हमको ऐसा लग रहा है. तो हमें क्या लग रहा है? इट अपियर्स टू बी स्टेशनरी. टू हुम? टू द ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ सरफेस. ना कि हमको, हमने तो डायग्राम देख रहे हैं. बट इफ वी आर सीइंग लाइव टू एनी सैटेलाइट, और हम ऊपर देख रहे हैं, 6 घंटे के बाद भी देख रहे हैं, वो हिल ही नहीं रहा है उस पोजीशन से. व्हाट इट मींस? तो 6 घंटे में अगर हम यहां से लेके यहां तक हमारी जर्नी हो सकती है, तो सैटेलाइट की जर्नी कहां से लेके कहां तक हो रही है? यहां से लेके यहां तक. It means that the speed of the satellite is managing the position. It is holding its position, which is having, which is कह सकते हैं किस तरह का position कह सकते हैं? Apparent position. It is not changing its apparent position, जो दिख रहा है हमें. ठीक है, तो इस तरह के सैटेलाइट्स को हम लोग क्या कहते हैं? जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं. We used to call it as geostationary satellites. Is this clear, my dear kids?
कुछ आइडिया मिला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। या नाउ लिसन अप, मैं एग्जांपल्स लूंगा। पहला वाला जो एग्जांपल होगा वो इनसैट सीरीज का, इंडियन नेशनल, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट्स, इनसैट सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स। ये सारे सैटेलाइट्स कैसे हैं? जियो स्टेशनरी हैं। ओके सर, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सर? सो दीज सैटेलाइट्स कैन बी यूज्ड एज रिमोट सेंसिंग और एल्स कहते हैं ना मॉनसून सीइंग। ऐसे सैटेलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्पेशली एट बॉर्डर्स, ताकि उस पोजीशन को वो चेंज नहीं करते हैं। क्योंकि दूसरे सैटेलाइट्स को क्या करना पड़ता है, समझो कि अर्थ रोटेशन ऐसा है, तो कोई सैटेलाइट ऐसा घूम रहा है तो एवरी टाइम इट हैज, मतलब जब भी ये पोजीशन देखना चाहे ये विद इन ओनली 24 आवर्स में एक बार देखेगा वो, क्योंकि ऐसे जाके ऐसे आएगा, और नॉट 24 आवर्स, 12 आवर्स, ऐसे जाके ऐसे आएगा, फिर इधर आके इधर मिलेगा, सेम पोजीशन, सी हियर, लाइक दिस। 12 आवर्स में एक बार वही पोजीशन को देख पाएगा, such type of satellites. But this type of satellites, it can observe any position. आपने उस सैटेलाइट का किसी लोकेशन पे फिक्स कर दिया, so it can observe, it can keep an eye over that territory, over that location for 24 hours. So this is the best usage of geostationary satellites. So INSAT series के कितने सैटेलाइट्स हैं? बहुत सारे हैं बच्चों, somewhere around हो सकता है कि 10 to 12। ओके, इनसैट 1, इनसैट 1B, इनसैट 1A, इनसैट 2A, उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके वो अपने हिसाब से मिलिट्री कोड्स होते हैं, मिलिट्री कोड्स और टेक्नोलॉजिकल कोड्स। कैसा होता है कोड? इनसैट 1B, इनसैट 2C, ऐसे रहते हैं। दीज आर द कोड्स, वी डोंट नो व्हाट आर दीज कोड्स। It is, you know, these kind of programs run under so much secrecy, secrecy maintain की जाती है, ताकि enemies को पता ना चल पाए कि what type of satellites Indians are using. Okay, anyhow, so uh, so the first geostationary satellites कौन सा था इंडिया का? Okay, so basically satellites को कौन बनाता है? It was done by ISRO. ISRO बनाता है। कौन बनाता है? ISRO। ISRO क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एप्पल, एप्पल वाज फर्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट था। द लॉन्ग फॉर्म ऑफ एप्पल, एप्पल का लॉन्ग फॉर्म क्या था? अरियान पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये क्या था? पेलोड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इज दैट क्लियर माय डियर किड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इसका लॉन्ग फॉर्म तो आपको पता चल गया। अरियान वाज द अमेरिकन, कहते हैं ना अमेरिकन ने बनाया था ये चीज। मींस nowadays India is sending the satellites of other countries, but our satellites in the early days of space race, वहां पे space race था in 1950s 60s में। so it was run by two countries, दो countries, एक था आपका यूएसएसआर, दूसरा यूएसए, ठीक है। so पूरी दुनिया दो धड़ों में बट गई थी। one is the supporters of USSR, another one is supporters of USA. India was the non-alignment, non-alignment countries का क्या कहते हैं सदस्य था। So it can go anywhere, USA and USSR. तो कुछ सैटेलाइट्स यूएसए ने इंडिया के छोड़े और कुछ सैटेलाइट्स यूएसएसआर ने छोड़े। So USA helped us as well as USSR का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। Fine. So USA helped us to lift this सैटेलाइट इनटू द स्पेस, अरियान पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा सैटेलाइट था ये, बट द फर्स्ट सैटेलाइट वाज सेंट बाय द यूएसएसआर। इट वाज वन बाय द
USSR, and first astronaut was from USSR, not from USA. Keep this in mind. तो पहला सैटेलाइट जो था USSR का, उसका नाम था स्पुटनिक, स्पुटनिक 1. And second satellite was also sent by the Sputnik 2, by the Russia only, not by the Americans. So it is carried by, कहते हैं ना, मीन स्पुटनिक 2 ने डॉग कैरी किया था इनटू द स्पेस. सो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट्स नेम ऑफ USSR, तो उसको एस्ट्रोनॉट नहीं बोलते थे, उसको कॉस्मोनॉट बोलते थे, कॉस्मोनॉट. ओके, सो द नेम ऑफ दिस कॉस्मोनॉट वाज यूरी गागारिन. यूरी गागारिन. कितने लोगों को ये चीज पता है, पता नहीं. क्लियर. एंड फर्स्ट पर्सन ऑन द मून, फर्स्ट पर्सन ऑन द मून कौन था, बताओ मुझे, फट से बताओ यार, किसको याद है. इट वॉज इन 1969. ठीक है. अपोलो 11 मिशन, कितने लोगों को याद है, पता नहीं. Who was the first person? फट से बताओ. नील आर्मस्ट्रॉन्ग. चलो अच्छी बात है. कितने लोग गए थे बेसिकली, याद है कुछ? नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन. ओके. सेकंड, एडवर्ड अल्ड्रिन, कुछ याद है? थर्ड वन, सिर्फ 2 लोग गए थे. ओके, अच्छी जानकारी रखते हो. फाइन. ओके माय डियर किड्स, एक बार आप उसके बारे में देख लो, फिर कल बताना मुझे कि 2 लोग गए थे, 3 लोग गए थे. मैंने तो 2 लोगों का नाम बता दिया वैसे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडवर्ड एल्ड्रिन. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. नाउ एक्सपांशन ऑफ इनसैट, हम लोगों को पता है कि इनसैट क्या होता है. इंडियन नेशनल सैटेलाइट्स, है ना. कॉस्मो नॉट, ये देखो बच्चों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं. कॉस्मो मींस यूनिवर्स इन द रशियन लैंग्वेज. यूनिवर्स. कॉस्मोड्रूम कहते हैं जिसे, नहीं कॉस्मोड्रूम नहीं, कॉस्मोस. ओके, कॉस्मोस इज द रशियन टर्म विच मींस यूनिवर्स. ठीक है, यूनिवर्स कह लो या स्पेस कह लो. ठीक है, तो इससे वो टर्म को डराइव किया गया, कॉस्मोनॉट. ओके, सो एनी डाउट्स रिगार्डिंग स्पेस, एस्ट्रोनॉट, कॉस्मोनॉट? नो डाउट. ओके, सो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में जान लेते हैं. ओके, नाइस. ओके, सो पहला पॉइंट बनाते हैं. ओके, द ऑर्बिट ऑफ geostationary satellites, the orbit of geostationary satellite should be circular and coplanar with the equatorial plane of the earth. What it means, इसका मतलब क्या है पता है आपको? What it means, you know that? इसका मतलब क्या है पता है?
See here my dear kids, what I'm trying to say, imagine that ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये आपका अर्थ है, ठीक। नाउ सी हियर, दिस इज योर इक्वेटर, ये आपका इक्वेटर है, दिख रहा है आपको? इज दैट क्लियर? सो दिस प्लेन, ये जो कोप्लेनर वाला ऑर्बिट है ना, किसका? जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का, मींस ओके, so the plane of the geostationary satellite should be coplanar with the equatorial plane। मतलब ये जो इक्वेटर जिसे हम कहते हैं, ये जो प्लेन है ना, इट शुड बी इन दिस प्लेन, ये वाले सैटेलाइट के प्लेन में होना चाहिए, ठीक है, किसके? जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के। दिस इज वन पॉइंट दे आर मेकिंग। क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आई बच्चों? यस, सो दिस इज वन पॉइंट दे आर ट्राइंग टू मेक दैट। ओके, बहुत ही सिंपल है। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट, the angular velocity, the angular velocity, the angular velocity of geostationary satellite, ठीक है, should have same magnitude, should have same magnitude and direction as that of earth, ठीक है। मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको मैं, that is the angular velocity, the angular velocity should be from the west to east, ठीक है, and period of revolution should be 24 hours, ठीक है। Now listen up my dear kids, मैं क्या कह रहा हूं, what I'm trying to say you peoples, देखो, this is your earth, ये आपका earth है, ठीक है, this is your earth, ये आपका, ये आपका, ये आपका क्या है? इक्वेटोरियल प्लेन है, फाइन। नाउ with the red color I'm going to operate the orbit of the geostationary satellite, ठीक है, इसको मैं ऐसे बना रहा हूं, so I'm using black color। समझो कि आप कहीं पे यहां पे खड़े हो, so this is your east, this is your west, ठीक है, fine, and this is north and south, fine। So listen up my dear kids, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, the angular speed या angular velocity कह लो should be from the west to east, ठीक है। अभी west to east क्या होता है, समझो, you should show like this, आपका रोटेशन ऐसे होना चाहिए। इफ यू मेक अ ओवरव्यू, यहाँ पे आपने आंख रख दी ऊपर से, अगर ओवरव्यू देखा तो इट इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। कौन सा वाला है? एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर से देख रहे हो ऐसे घूम रहा है, मतलब वेस्ट से ईस्ट की ओर आ रहा है। से फॉर एग्जांपल यू आर समवेयर हियर, और आप यहां से लेके सैटेलाइट को यहाँ पे देख रहे हो, सो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट यू आर सीइंग, ठीक है, आप देख रहे हो। नाउ अगर यहां से लेके यहाँ पे देख रहे हो, so listen up, when you come here, when your position is somewhere here, you know what, you will reach somewhere here, यहाँ पे reach करोगे,
तो अगर आप हाफ ऑफ द पोर्शन रिवॉल्व कर लेते हो यहां से लेके यहां तक, so it takes 12 hours, and from here to here coming back to the same position again it takes 12 hours. So basically the satellite is revolving over the period of 24 hours. So same way आप वेस्ट से लेके फिर वापस वेस्ट को ही आ गए for one rotation of the earth, so it has took the period of 24 hours. Either you take the satellite's period of time having the revolution or else the period of time for earth, both are same. यही चीज वो लोग कह रहे हैं. The magnitude of angular velocity of geostationary satellite, it should be same as that of the earth. क्या मेरी बात आपको समझ में आई बच्चों? क्या क्लियरली समझ में आ गई? What we are trying to say that कि magnitude and direction are same, दोनों का magnitude और direction same है. ठीक है? So this was very much simple. ये simple था. ठीक है? So I'm going to make the third point. ठीक है? तीसरा point किस चीज का? Basic concept of geostationary satellite का. So the orbital radius, see here term what they are using, orbital radius मतलब the radius pertaining to orbit of the satellite of geostationary satellites. ठीक है? should be about 42,400 किलोमीटर. ठीक है? कितना है ये? Orbital radius of geostationary satellite should be about 42,400 kilometer, or its height should be about 36,000 kilometer above the Earth's surface. Is that clear, my dear kids? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? See, listen. ये आपका अर्थ है. ठीक है? ये आपका अर्थ है. This is your earth, and see here, this is the satellite's orbit. ठीक है? Okay, now this is right. तो मैं यहाँ पे दो रेडियस को डालूंगा. आई एम गोइंग टू ड्रॉ टू रेडियस माय डियर किड्स. वन इज फ्रॉम द सेंटर. ठीक है? अंदर वन इज फ्रॉम द सरफेस. सी, सो से फॉर एग्जांपल आपने सैटेलाइट को लोकेट किया, सो दिस डिस्टेंस शुड बी 36,000 किलोमीटर. मींस if you are simply lifting the satellite up to 36,000 किलोमीटर, ओके, तो तब इसको हम क्या बोलेंगे? These types of satellites are called as geostationary satellites. Or else the same distance you are defining with the 42,400 किलोमीटर, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स बोलेंगे. इज दिस क्लियर माय डियर किड्स? क्या क्लियर हो गया? Either you choose 42,000 किलोमीटर 400 means what? Sir, क्या इसको हम कहें कि this is 6,000 6,240. Yeah, this is correct. अगर इसके साथ मिला, okay. So the radius of the earth is 6,240 किलोमीटर, और ये जो बाकी का है ना, this is 36,000 किलोमीटर. मींस किसी भी सैटेलाइट को आप अगर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कहते हो,
it should be at the height of 36,000 kilometer from the surface of the earth and 42,400 kilometer from the center of the earth. ठीक है, इसी ऑर्बिटल रेडियस पे अगर कोई सैटेलाइट हो तो उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं. नाउ ओके माय डियर किड्स, लिसन, द फोर्थ पॉइंट. और एक टर्म आता है, वेट, मैं पहले इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता, थोड़ा सा इसको बोल लेते हैं फिर देखते हैं. ठीक है, द सर्कुलर ऑर्बिट, the circular orbit of the geostationary satellite. One thing we came to know that, क्या बताओ, कि अर्थ है तो आपका जो सैटेलाइट है जियोस्टेशनरी, इट विल बी नॉट गोइंग टू मूव एट द पोलर, नॉर्थ साउथ पे तो नहीं घूमेगा. डेफिनेटली इट विल बी एट द इक्वेटोरियल प्लेन विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर ऑफ द अर्थ, वहां पे घूमेगा. ये चीज आपके दिमाग में क्लियर हो गया है ना. The circular orbit of the geostationary satellite is called as geostationary orbit. Now I'm going to draw एक डायग्राम. ठीक है, मैं एक डायग्राम को ड्रॉ करूंगा. अभी आपको बताना है कि जियोस्टेशनरी ऑर्बिट ऑर्बिट कौन सा है उसमें से. ठीक है, which one is the geostationary orbit? Tell me, this is earth. क्या ये जियोस्टेशनरी ऑर्बिट है, और एल्स दिस वन? क्या इसको पोलर ऑर्बिट बोलते हैं? टेल मी विच वन इज द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट. ये सही है या ये सही है? मेक अ क्विक रिस्पॉन्स माय डियर किड्स, फट से. So this is not geostationary. Vertical is not geostationary. This is geostationary. ठीक है, ये क्या है आपका? इट इज विथ रिस्पेक्ट टू योर इक्वेटर. आपके इक्वेटर के का जो भी प्लेन है उसमें जो आपके सैटेलाइट फिक्स करोगे एट द 36,000 किलोमीटर, दैट इज जियोस्टेशनरी. ओके, दिस इज पोलर ऑर्बिट. पोलर सैटेलाइट्स इसमें फिक्स करोगे आप लोग. दिस इज नॉट जियोस्टेशनरी, तो ये जियोस्टेशनरी नहीं है. इज दिस क्लियर माय डियर किड्स? सिंपली टू शो दैट, आपको दिखाना है कि आप ऊपर से देख रहे हो, ये आपकी आंख है, दिस इज योर आई. ओके, यू आर मेकिंग ओवरव्यू, ऊपर से देख रहे हो. ठीक है, ओवरव्यू. सो टू शो दैट ओवरव्यू, आप डायग्राम डायग्राम या बुक में कैसे ड्रॉ करते हो? यू आर गोइंग टू ड्रॉ लाइक दिस. हाँ यार, ऐसे दिख रहा है हमें. ओके, यहाँ पे क्या दिखेगा? हमको दिखेगा कि 36,000 किलोमीटर, क्योंकि दिस इज अवर आई एंड वी आर सीइंग लाइक दिस. बट एक्चुअली इसका डायग्राम कैसे? ऐसे. सो वी आर सीइंग, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, दिस इज 36,000 किलोमीटर. सो हमने ऊपर से ऐसा देख रहे हैं, एंड दैट व्यू वी आर सीइंग हियर. ऐसे मैं डायग्राम इसलिए ऐसे डाल रहा हूं ऑन द राइट साइड. इज दिस क्लियर माय डियर किड्स? आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसीलिए, और एल्स एवरी टाइम यू विल थिंक दैट सर ने सर्कुलर बोला और वर्टिकल ऑर्बिट डाला, इसी को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं. ओके, अभी देखो, यू विल बी हैविंग नेम, से फॉर एग्जांपल प्रियंका, प्रियंका राठौड़. ठीक है, सो प्रियंका को घर में प्रिया करके बुलाते होंगे या प्रियू करके बुलाते होंगे. हर फ्रेंड्स कॉल हर प्रियी, मींस 3-4 नेम्स. ठीक है, लाइक दैट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को भी क्या होता है पता है? जैसे क्लर्क का क्या काम, क्या होता है क्लर्क का? क्लर्क एक जगह बैठ जाता है. किसी भी ऑफिस में एक बंदा एक जगह बैठेगा, वो बैठ के हर सारी चीज काम करेगा. सो जो भी फाइल्स इसको चाहिए, ही विल आस्क फ्रॉम द
he or she will ask from the peon. तो peon भागदौड़ करेगा, clerk बैठेगा. Okay, whatever, different names, I don't know the names. Lavanya. Okay, so peon भागदौड़ करेगा, क्लर्क फिक्स रहेगा स्टेट ऑफ रेस्ट में. ठीक है, चलो. तो अभी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को और एक नाम रखते हैं. ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ नेम इट इज? क्लर्क. ठीक है, क्लर्क जियो सिंक्रोनस. ठीक है, ऑर्बिट. बेसिकली अर्थ का ऑर्बिट जो होता है ना, अर्थ का ऑर्बिट, यहां पे देखो जियो क्या होता है, जियो अर्थ होता है. ठीक है, तो इसको सिंक्रोन करके, सिंक्रोन, ठीक है, इसको सिंक करना, मतलब अगर कोई यहाँ पे पोजीशन है टू दिस, ये पोजीशन को सिंक करना, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट. मतलब ये ऑर्बिट इसके इक्विटोरियल प्लेन के हिसाब से ही क्या करेगा, रेफरेंस करके मूव करेगा. सो दैट इज बाय जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट. बट व्हाट टाइप ऑफ जियो सिंक्रोनस? क्लर्क टाइप ऑफ, यहीं पे बैठ के, हिलेगा नहीं वो. ठीक है, दिस इज सेकेंड नेम. द थर्ड नेम इज, और एक नाम है इसका, पार्किंग ऑर्बिट. जैसे आप कार को पार्क करते हो कहीं पे, एक जगह पे पार्क कर दिया, ठीक है, यहाँ पे पार्क कर दिया, वैसे ही एक सैटेलाइट को आपने यहाँ पे पार्क कर दिया. ठीक है, और आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो. ठीक है, इट इज फिक्स्ड. वेरी इंटरेस्टिंग नेम्स आर देयर, नो माय डियर किड्स. एंड इसको कई बार मैंने आपको बताया ना लॉजिक, वो वाला लॉजिक यूज करके बोला जाता है. हाउ डू दे गेट एन आइडिया टू कीप दिस नेम, सर? एक बार कुछ लोग इस तरह का लॉजिक लगाते हैं, जैसे मैंने लगाया ना, ठीक है, ये नाम इसलिए ऐसे है. और कुछ बार क्या होता है, इट वॉज द नेम केप्ट बाय द साइंटिस्ट्स. साइंटिस्ट लोग नाम रखते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से भी नाम बनते हैं. तो कुछ लोगों का ये है कि ये लॉजिक है कुछ, और कुछ लोगों का है कि दिस नेम वॉज केप्ट आफ्टर वन साइंटिस्ट. एक बंदे ने इसका नाम रखा था, इसकी खोज की थी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की, तो इसलिए उसका नाम ही रख दिया इसको. तो उस बंदे का नाम क्या था? आर्थर सी क्लार्क. ठीक है, आर्थर सी क्लार्क. तो उसके ही नाम पे ये चीज रखा गया है. दे यूज्ड टू टेल लाइक दैट. ठीक है, एनी हाउ, दिस इज द फोर्थ पॉइंट. तो क्या यहीं पे स्टॉप करते हैं या इसको कंप्लीट कर देते हैं? स्टिल इट विल बी हैविंग सम फाइव पॉइंट्स. इन द नेक्स्ट क्लास अगर कहना हो तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वरना यहीं पे बोले तो यहीं पे करेंगे. कंप्लीट, चलो करते हैं. सो द फिफ्थ पॉइंट. ओके, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किस लिए यूज होते हैं? बेसिकली इट विल बी यूजफुल टू हैव ट्रांसमिशन. सो व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन, माय डियर किड्स? तो ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है ना, इसका कहां पे यूज होता है? टू हैव द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स, टू गेट द टीवी प्रोग्राम्स. ठीक है, टीवी प्रोग्राम्स को लेने के लिए कोई प्रसार भारती जैसा ऑफिस होता है. ओके, प्रसार भारती. सो दे विल कंडक्ट द प्रोग्राम्स हियर एंड दे विल सेंड फ्रॉम हियर. कुछ ऐसे छतरियां होती है. सो फ्रॉम हियर, लाइक दिस, फ्रॉम हियर दे विल सेंड टू द सैटेलाइट्स. ठीक है, और सैटेलाइट से ग्राउंड स्टेशन यहाँ पे होते हैं. कहाँ पे? एट द डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट है. ठीक है, सो डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे कनेक्टिविटी किसी घर पे होती है,
लाइक दिस, और एल्स यहाँ पे वहां तक कनेक्टिविटी नहीं पहुंच रही है तो यहाँ पे एक बड़ा सा क्या होता है, एंटेना होता है, तो इसके थ्रू भी यहाँ पे हमारे घर के पास या आपके घर के पास ऐसे कुछ सिग्नल्स होते हैं। ओके, सो बाय दैट सिग्नल्स भेजे जाते हैं, तो इससे कनेक्टिविटी टीवी को होती है, और एल्स छोटे छतरियां होती हैं डीटीएच, सो थ्रू दैट द कनेक्टिविटी विल बी गिवन टू द वॉच televisions. So this is the way of transmitting the signals. Okay, geostationary satellites इसलिए यूज होते हैं. Is that clear, my dear kids? Not only TV programs but also radio signals. रेडियो सिग्नल्स कहाँ पे यूज होते हैं सर? रेडियो सिग्नल्स एंड टेलीफोन टॉक्स. टेलीफोन टॉक्स क्या होता है? लैंडलाइन. ये रेडियो सिग्नल्स क्या होते हैं? मोबाइल फोन्स. ठीक है, डू यू गॉट दिस पॉइंट? या. तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को और भी एक नाम से बुलाया जाता है बच्चों, इसको और एक नाम से बुलाया जाता है, लाइक लावण्या सेड दैट प्रियंका को पिंकी करके बुलाते हैं. हमको पता ही नहीं, मैंने जज करा था प्रिया, प्रियू, प्री, जो भी मतलब उनके फ्रेंड्स हो ये हो, पिंकी करके भी. तो ऐसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को किसी और नाम से भी बुलाते हैं. सिंक्रोनस कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स. ठीक है, और इसको इसका शॉर्ट फॉर्म जो है ना, इसको कैसे बोलते हैं इन द साइंटिफिक कम्युनिटी? शॉर्ट फॉर्म सिंक्रोनस कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को SYN, फर्स्ट थ्री टर्म्स. ठीक है, एंड कॉम, एस, सिंकॉम्स, ऐसे बुलाते हैं इसको. ठीक है, इज दिस क्लियर माय डियर किड्स? तो ये आपका पांचवा पॉइंट है. ठीक है, प्रियंका राठौड़, अनुष्का गुडी, फाइन. सो the sixth point which we are going to make about syncoms. syncoms मतलब geostationary satellites जो है. so the orbital velocity, इसके जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है ना, ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसका स्पीड कितना होता है टू गेट इट इनटू द ऑर्बिट एंड नॉट टू मूव अवे फ्रॉम इट्स पाथ. उसके पाथ से वो नहीं खिसकना चाहिए, तो उसका जो नियर अबाउट स्पीड होता है ना, इट शुड बी 3.07 10 रेज टू 2 मीटर पर सेकेंड. अगर इतने स्पीड से कोई भी सिंकॉम्स या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स चलते हैं तो वो उस पाथ से भटकेंगे नहीं. इफ इट इज एक्सीडिंग, डेफिनेटली पाथ से क्या होगा, डिविएट हो जाएगा. ओके, सो दिस इज सिक्स्थ पॉइंट. द सेवेंथ पॉइंट, कहीं बार समटाइम्स बाय द एस्ट्रोनॉमर्स planets are also called as satellites of sun. तो सन के सैटेलाइट्स एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा इन यू नो मजाक तरीके से इसको बोला जाता है. planets are the satellites of the sun. It is called by whom? Astronomers, not originally. ठीक है, anyhow. एंड साइंटिफिक कम्युनिटी जो होती है ना, वो क्या कहती है? इलेक्ट्रॉन्स आर द सैटेलाइट्स ऑफ न्यूक्लियस. सो इट इज कॉल्ड बाय साइंटिफिक कम्युनिटी. ठीक है,
ओके, तो बेसिकली व्हाई इट इज कॉल्ड लाइक दैट सर, ऐसे क्यों कहा जाता है? यू नो, आइदर एस्ट्रोनॉमर्स या साइंटिफिक कम्युनिटी, बेसिकली साइंटिफिक कम्युनिटी, व्हाट दे थिंक दैट satellites are the smaller bodies which revolves around the bigger bodies. मतलब ये लोग मजाक के तरीके से कह लो या कुछ उनका परसेप्शन हो सकता है, if this is bigger body, ठीक है, if any smaller bodies are revolving around the bigger bodies, so these are called as satellites. So इनका परसेप्शन है एक, okay, anyhow, so the ninth point I'm going to make is पोलर ऑर्बिट के बारे में, ठीक है। ये पोलर ऑर्बिट होता क्या है, ठीक, बेसिकली this type of orbit you'll get from north to south if this is earth, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट, छोटी बॉडी अगर नॉर्थ से साउथ की ओर घूम रही है, सो सच टाइप ऑफ ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एज पोलर ऑर्बिट्स। मैं थोड़ा सा अच्छी तरह से डायग्राम डाल लेता हूं सो दैट इट इज लुकिंग वेरी मच ऑकवर्ड। सर इंटरेस्ट से नहीं बोल रहे हैं, बोर्ड से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए फिर। सो लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज योर सैटेलाइट, सो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ कोई चीज घूम रही है एंड दिस इज अर्थ, ठीक है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज पोलर ऑर्बिट, ठीक है। while the earth spin in east west डायरेक्शन, मतलब वेस्ट से ईस्ट की ओर क्या होता है, अर्थ घूमते रहता है। सो सन तो एक ही जगह फिक्स रहेगा। सिंस हम यहाँ पे थे, तो अगर ऐसे यहाँ तक समझो कि डार्कर पोर्शन था, यहाँ पे लाइट है, सो दिस इज डार्क पोर्शन, ठीक है। और हम यहाँ पे थे, सो हम इस और आ रहे हैं, तो वी आर सीइंग लाइक सन इज राइजिंग, सूर्य ऊपर उठ रहा है, ऐसे दिखेगा हमें। when it is coming like this, when we come front, तो पूरा सूरज दिखाई देगा and we see like that sun has rised, ठीक है। तो वेस्ट से ईस्ट की ओर स्पिन करता है अर्थ, एंड नॉर्थ से साउथ की ओर the satellite will revolves. So this orbit where the satellite is revolving from the north to south is called as polar orbit. Basically ये जो पोलर ऑर्बिट की खासियत क्या होती है पता है? इट कैन स्कैन द maximum surface of the earth, you can say even whole surface of the earth. Sir, how it is possible? जब आप यहाँ ऊपर से अपना आंख से देख रहे हो, this is your eye in the satellite, means camera in the satellite, so it can see, ये कहां तक देख सकता है, ये यहां तक देख सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे यहां तक देख सकता है, okay। Now say for example, if the satellite is somewhere here, okay, now you can see ये यहां तक देख सकता है। इफ सैटेलाइट इज समवेयर हियर, ठीक है, देख लो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, सो दैट इट इज स्कैनिंग ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द व्हाट अर्थ। तो ये इतना पूरा पोर्शन देख सकता है, स्कैन कर सकता है। नाउ व्हेन द सैटेलाइट इज हियर एट दिस पोजीशन, एज यू कैन सी, ऐसे देख रहा है ये, इट मींस दैट द whole portion of the surface of the earth can be scanned by the polar satellites, ठीक है। जो सैटेलाइट्स पोलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं तो उनको पोलर सैटेलाइट्स बोला जाता है। सो जो सैटेलाइट्स पोलर ऑर्बिट में घूमते हैं पूरे अर्थ के पोर्शन को स्कैन कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज ओवर माय डियर किड्स। मैंने पोलर सैटेलाइट्स के बारे में अभी कुछ भी डिटेल में नहीं बोला, सो आई हैव मेड 9 पॉइंट्स। तो टाइप ऑफ सैटेलाइट्स कितने आते हैं टेक्निकल वाइज,
एक आपका आता है जियो स्टेशनरी, दूसरा आता है polar satellite. Geostationary satellite can scan particularly one region of the Earth's surface, and polar satellites can scan the whole region of the Earth's surface. ठीक है? Okay, my dear kids, this is it. And both the statements are true, sir. Yes, my dear kids. Okay, so this is it. This is the class. If you have any difficulty, or if you find any difficulty, you can ask me any type of question pertaining to these satellite concept. सैटेलाइट इन डिटेल बोला मैंने, सिर्फ जियो स्टेशनरी के बारे में बोला, पोलार के बारे में कल डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो ऑन एन एवरेज मैंने पोलार सैटेलाइट्स के बारे में बोल दिया आपको. जस्ट आई हैव टू गिव एग्जांपल्स, दैट्स इट. ओके ओके माय डियर किड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग पेशेंसली. ओके, बाय बाय माय डियर किड्स. जय हिंद. सी यू टुमारो एट द सेम टाइम.